Good morning, friend. My name is Deepak Singh Best. Today's our topic is advance receipt on GST. It will adjusted next month settlement against sales on GST in Teleprime. Let's discuss with example of advance receipt. When a customer pay you 50,000 as a advance against sales of HP laptop, GST is applicable 28%. This month you pay the return. The customer is never buy the HP product. This month you pay GST return. You will be liable 50% on 50,000 on GST is applicable 28. 10,000 is your something is taxable amount. Next month our customer you sold HP product 60,000 and he will pay advance 50,000 and GST rate is applicable. In this month you will never pay ad, dual tax due to we will pay before 50,000 on tax and this month you will pay 10,000 on GST. How can perform this entry in Tally? We will see later. Second is there is two condition when advance receipt is applicable. If company previous financing turnover is less than 1.5 crore, you will never pay tax on advance receipt. Next, if your company pre-financing year turnover is greater than more than 1.5 crore, you will pay tax on advance receipt. You deduct the advance tax your customer. Let's discuss how to perform in Teleprime. First, you will enable tax liability on advance receipt in your company. You will create some ledgers and stock items. Suppose Sunday debtor ledger create, sales ledger create, and stock item HP stock laptop stock item is create. We will perform various accounting entry, receipt voucher entry, increase tax liability due to you receive advance income. After that you GST return this month and it will count advance receipt GST. So next one you create the sale bill to customer and this month you never pay twice time tax, so you decrease your tax liability due to you pay advance receipt. After that this month next your advance receipt. First you create a company and after that you press alt plus K and feature option selected F11. After that you see this type figure is display you will first GST number put. We will put here GST number 05 is Uttarakhand code number and PAN number company. After that you enable tax liability on advance receipt is highlighted. It will be yes option. In April month you perform various transaction in entry. First you receive advance amount. After that you increase your tax liability behalf your customer. Actually you did not supply the goods this month. After that you pay the electronic cash ledger entry and you deduct your output tax GST return at the month of April. First you will received advance amount against sales of good. These are the step how to perform. First you go gateway of Tally, then voucher. After that press F6 receipt voucher.
You simply receipt voucher Deepak Singh is credit. Journal entry is simple. Bank account is debit. Our bank is SBI debit and credit is Deepak Singh 50,000. But you never put. You press Alt J. After that dialog box is open. Stat adjustment and you select the option advance receipt. After that you pass the journal entry SBI bank debit to Deepak Singh. You tell them some necessary information which product behalf advance receipt. So we will next slide discuss here. Select the stock item. Which product you pick. Which product you want pick behalf of advance receipt. Second, how much advance receipt. In below figure show discuss us HP product is stock item and advance amount is 50,000 you receive. Automatically it will calculate GST rate 28%. It will calculate. We will sell on our local area, so it will calculate central tax and state tax. Next, we will receive the advance amount. After that, we will increase our tax liability due to we pay our tax GSTR return. So we will perform. First, this is the example of path. Go to gateway of Tally, display more report, GST report, GSTR1. After that, GSTR1 is your sales detail. You press here Alt J. After that, you see the number of option, nature of adjustment, increase of tax liability, additional detail on account receipt. After that, you pass journal entry. You see the at the top of the bottom, you selected increase of tax liability on account advance receipt. After that, you journal entry pass advance tax on GST because we pay never against the supply. So we will pass this entry. Advance on tax on GST is current asset to credit. Output CGST 14%, output SGST is 14%. It will calculate it. There are two parameters. First is rate, another taxable. Taxable value is without tax. Our customer pay 50,000 and 10,937.50 paisa is GST. So without tax amount is 3962.50 paisa. Same here as GST. After that, you see the sales report. Increase the tax liability. We will see here what effect tax liability. Our tax liability is increased here. Mention here 50,000. And next one, you see the advance receipt amount unadjusted against sales supply is 50,000. And you will check sales GSTR 3B and you will find that here your tax outward supply and inward supply tax liability is 10,937. It will if you received advance receipt, it will show here. It means that you never supply the goods again. So here writing amount unadjusted against supply, and you will this month pay to your tax liability 10,937.
something amount, you pay the government tax. So you go to GST portal and create deposit your cash challan, electronic cash item. So we will pass the journal entry electronic cash ledger GST 5468.75, electronic cash ledgers state GST. Deduct your amount is SBI Bank 10,937.50. You will deduct. After that, you will adjust your output tax liability adjustment. So you entry pass output CGST 14%, output SGST is 14%, 5,468 point, and it will deduct from you deposit your electronic cash ledger amount. So CGST adjusted 5,468.75 paisa, same as state GST. So this month is over. You will pay GST, and next month, May month start. We will there is many accounting entries performed. First is sales entry. After that, decrease tax liability in your journal entry. After that, you calculate your tax liability. So payment deposit to electronic cash ledger entry. After that, you GST return entry at the end of the my month. You simply create a sale bill, and here is mention party name, sales ledger under sales, your product name HP laptop, your total quantity 1, and your total including tax 60,000, and your buying of the product 46,875 rupees. 28% is applicable on GST. We will sell our local area, so we will calculate output CGST 14% and output SGST at the rate 14%. The amount is 6,562.50 paisa. This will raise the invoice. After that, we adjust advance receipt 50,000. Here you see the advance receipt against reference 50,000, and balance your HP product sale value is 60,000, balance is 10,000, new reference, it is a important. Next you raise the sales bill. After that, you will decide to pay this month sales return. So we will check to pay advance receipt 50,000. You never pay the twice time, so you will pay only one. Your sale bill is 60,000, you already pay 50,000 on GST. After 10,000 balance amount you pay GST. So how can you do it? Let's check out reversal tax liability on advance receipt for sales completed in next month. So this is the path how to check your sales. Go to the gateway of Tally, display more report, GSTR report, and GSTR1. It is sales report. So press here Alt plus J, state adjustment. State adjustment, nature of adjustment. We want decrease our tax liability due to already pay advance tax. So we will decrease, we select decrease of tax liability, additional detail, sales, again advance receipt here, and you now you check out at the top your decreasing of
tax liability and additional details sales again. This means you perform the sale entry. Now you are decrease your tax liability, so we will debit output CGST, output SGST at the rate 14%. We mention is 5468.70, 5468.75. It will deduct advance tax on GST 10,937.50 to reduce. After that, this entry passed, we check out sales report GSTR1. We will see the figure, and here is this month your generate sale bill 46,875. Total bill amount is 60,000 and taxable is 13,125. We already paid 10 10,900 something amount, so we will pass the reverse the our tax liability is 10,937. Here is mention to minus 50,000 before we entry. So you will check out the advance receipt. This amount received sales against advance. It means your sales advance receipt is adjusted with sales 50,000. After that, we will check GSTR 3B report. You will see here your tax amount is reduced. You pay only 10,000. 7,812.50 is your product amount, and tax is 2,187.15. Both are sum is 10,000. And next report you will see here advance receipt is adjusted with sales 50,000, and here is 0. It means your advance receipt is adjusted with sales. After that you preparing uh, your output tax liability is 2,187.50. You go to your GST portal and create the challan. Your output tax liability is 2,187. It will divided into two parts 14%. Here we entry pass electronic cash ledger CGST and electronic cash ledger SGST 1093.75 paisa 1093.75. It will deduct our bank account SBI Bank 2,187.50. It will deposit on GST portal. After that we did our output tax liability is adjustment. Simply we passed our journal entry output CGST is 14%, 1,093.75. Output SGST 1,093.75. It will deduct from our electronic cash ledger CGST. We previous journal entry passed to deposit our amount 1,093.75, same as electronic cash ledger as GST 1,093.75. It will adjust it. So any query? After that we say our sale bill is 60,000 and we received in April month 50,000. The balancing figure is 10,000. We received 10,000 receiving entry. Bank account is debit to Deepak Singh 10,000. Here is mention. पिछली क्लास में हमने एडवांस रिसिप्ट सेम मंथ में किया था. इस बार हम लोग एडवांस रिसिप्ट नेक्स्ट मंथ में किस प्रकार सेटल किया जाता है एडवांस एक्सेल को, और हम लोग इसमें एक चीज और बढ़ा रहे हैं. जो रिसिप्ट लिया था उसके अगेंस्ट में सेल्स अमाउंट अब
ज्यादा होगी हमारी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कंपनी बना के क्रिएट कंपनी पे जाना है। नेक्स्ट मंथ, मेलिंग एड्रेस दीपक सिंह, इरुमदारा, नैनीताल। उसके बाद स्टेट आपकी उत्तराखंड, पिन कोड 244715, मोबाइल नंबर 7696796465। हमारा फाइनेंसिंग ईयर है 1 अप्रैल 2013। यहाँ पे आपने सेव कर लेनी है कंपनी को। उसके बाद हमने अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे यहाँ पे जाना है, यस करना है। आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जीएसटी नंबर डालना है। सेकंड, आपने यहाँ पे एडवांस शिफ्ट लायबिलिटी जो आपका ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको अनेबल करना है, यस करना है। करते हैं। मेरा जीएसटी नंबर है 05। हमने मंथली भरनी है। इसके बाद आपने अनेबल टैक्स लायबिलिटी को क्या करना है, यस करना है। कंट्रोल ए करोगे, ये आपका सेव हो गया। कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब हम लोग कुछ कॉमन लेजर बनाएंगे इसके अंदर। क्रिएट, अब आपने यहाँ पे लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपने लेजर का नाम डालना है सेल लोकल, या फिर आप इसको मिटा के इंट्रा भी डाल सकते हैं, सेल इंट्रा ट्रांजैक्शन। एंटर करोगे, यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, सेल्स नॉट एप्लीकेबल। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर आपने ये ऑप्शन को सेट ऑल्टर डिटेल को क्या करना है, यस करना है। यस करते ही आपने डिस्क्रिप्शन कोड, एचएसएन कोड कुछ नहीं डालना। यहाँ पे आपने क्या करना है, टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिवर्स चार्ज कुछ नहीं सिलेक्ट करना। हमारा 28% टैक्सेबल है। आपकी सप्लाई क्या है, गुड्स है। कंट्रोल ए करके आप सेव कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम पार्टी का, दीपक सिंह सन्ड्री डेप्टर, यस करोगे। इसके बाद हम इसका जीएसटी नंबर डालेंगे 05 से, क्योंकि हम सेल क्या कर रहे हैं, सेम स्टेट में कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग एंटर कर लोगे। कंट्रोल ए करके यस कर लोगे। आपने 2 लेजर बनाए। अब हम लोग नेक्स्ट लेजर बनाएंगे, आउटपुट CGST @14%। किसके अंदर रखोगे, ऑल्ट सी करोगे। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं आउटपुट टैक्स। किसके अंदर रखोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यस करोगे। कंट्रोल ए कर लोगे। इसके अंदर आप जीएसटी सिलेक्ट करोगे। सेंट्रल टैक्स कितने परसेंट है, 14%। नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए कर लोगे।
ऐसे ही हम लोग आउटपुट SGST आउटपुट @14% किसके अंदर रखोगे? ड्यूटी ऑफ टाइप GST होगी हमारी स्टेट टैक्स 14%, नॉर्मल राउंडिंग कंट्रोल A कर लोगे। अब आप बैंक अकाउंट बनाओगे SBI बैंक, यहां पे सिलेक्ट करोगे बैंक अकाउंट, कंट्रोल A कर लोगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एडवांस रिसिप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? वाउचर पे जाना है। एडवांस रिसिप्ट के लिए वाउचर पे गए। अब वाउचर पे हमने सबसे पहले क्या करना है? एडवांस रिसिप्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? वाउचर में जाके F6 प्रेस करोगे, यहां से क्रेडिट करोगे दीपक सिंह 50,000 डिपॉजिट कराया एडवांस। अब ये तो हुआ क्या है? सिंपल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे Alt J करना है। आप देख रहे हो Alt J करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है? स्टैट एडजस्टमेंट फॉर GST, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है एडवांस रिसिप्ट। जैसे ही आप एडवांस रिसिप्ट सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे आपके हेडिंग में यूज फॉर एडवांस रिसिप्ट, एंटर करोगे। अब आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे आपने एक स्टॉक आइटम बताना है जिसमें आप गुड्स सेल कर रहे हो। तो हमने स्टॉक आइटम पहले नहीं क्रिएट किया था, अब हम डायनामिकली यहीं पे क्रिएट करेंगे। Alt C करोगे, HP लैपटॉप, यहाँ पे यूनिट बनाएंगे, Alt C करेंगे, पीस और पीस, कंट्रोल A करके सेव कर लोगे। एडिशनल यूनिट हमने बनाना नहीं है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे जो आपको स्टैट्यूटरी डिटेल है, यहाँ पे आपने क्या डालनी है? टैक्स डालना है। अप्लाई करोगे, यहाँ पे GST डिटेल यस, डिस्क्रिप्शन HP लैपटॉप। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं ये कोई रियल HSN कोड नहीं है, ये क्या है? लर्निंग पर्पज से है। तो यहाँ पे आपका 8 डिजिट का कोड होता है। कहीं भी यूनिवर्सल जाओगे आपको यह कोड से सेम प्रोडक्ट मिलेगा। एंटर कर लोगे, यहाँ पे टैक्सेबल रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है 28%। यहाँ पे कंट्रोल A करोगे और गुड्स, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब हमने इस प्रोडक्ट के अगेन कितना अमाउंट एडवांस रिसीव किया? 50,000। कंट्रोल A कर लोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या है? एडवांस। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दीपक 01 एडवांस रिसीव किया है, ये रेफरेंस रहेगी हमारी। और SBI बैंक के अंदर क्या आ रहा है हमारे? ये अमाउंट रिसीविंग हो रही है एडवांस रिसिप्ट। SBI बैंक, आपने देखा 1 अप्रैल में हमने एडवांस रिसिप्ट कर ली। यहां से बाहर आओगे, बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट पे जाओगे, Alt F1 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए 50,000 बैंक अकाउंट में 50,000 आए हुए हैं। संडी डेप्टर में माइनस है क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था पहले, इसीलिए यहाँ पे
माइनस पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में GSTR1 देखोगे, आपको यहाँ पे 50,000 क्या दिख रहा है, अनएडजस्टेड अमाउंट दिख रही है, एडवांस टैक्स जो हमारी लायबिलिटी है गवर्नमेंट को पे करना। उसके बाद आप GSTR3B भी चेक करोगे, अभी हमने बुक नहीं की लायबिलिटी तो हमें यहाँ पे क्या है दिख नहीं रहा। जैसे ही आप यहाँ पे लायबिलिटी बुक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, ये बोल रहा है एडवांस रिसिप्ट, अभी तक हमने कोई एडवांस रिसिप्ट एडजस्ट नहीं किया 50,000, ये आपको क्या है नहीं दिखेगा। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये है एडवांस रिसिप्ट, ये हमें ये बताएगा कि हमने कोई एडवांस रिसिप्ट ली हुई है जिसका अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो अब हम इसका एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या है, हम लोग टैक्स लायबिलिटी लेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, एंटर करोगे। अब यहाँ पे हमने ऑल्ट जे प्रेस करना है। अब ऑल्ट जे प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टेट एडजस्टमेंट। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं, जब आप ये बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड करोगे तो ये अमाउंट शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगी, ये अमाउंट आपको ये ब्लैंक दिख रहा है, आपने लायबिलिटी को क्या कर लिया है, बुक कर लिया, तो ये अमाउंट आपकी यहीं पे शो होगी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसके लिए क्या है, स्निपिंग टूल लेना है। स्निपिंग टूल से मैं क्या करता हूं, इसका स्नैपशॉट ले लेना है आपने, ताकि आपके गड़बड़ ना हो। अब वापस हमने कहा जाना है, अब हमने ऑल्ट जे प्रेस करना है, इंक्रीज करनी है टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट किसके लिए, ऑन अकाउंट एडवांस रिसिप्ट। यहाँ पे एंटर करोगे। अब हमने ये इसकी डेट चेंज कर देता हूं 2/4, एंटर करोगे। उसके बाद अब आपने यहाँ पे एक लेजर बनाना है। एडवांस टैक्स ऑन GST, और ये किसके अंदर रखना है, ड्यूटी सॉरी करंट एसेट के अंदर, नॉट एप्लीकेबल कंट्रोल ए। अब कितना एडवांस टैक्स हमने रिसीव किया था, वो GST आपने CGST SGST यहाँ पे डालनी है। तो CGST SGST की अमाउंट कितनी बन रही है, 39,062.50 062.50 एंटर करोगे। अब यहाँ पे आपने आउटपुट CGST 14%, यहाँ पे कितने, अब हमने एक गलती की है, क्या गलती की है आपने, यहाँ पे टैक्स अमाउंट डालना था। टैक्स अमाउंट हमारा क्या है, 10,937, ये अमाउंट आपकी यहाँ पे आनी थी। ये अमाउंट आनी थी, एक बार फिर से चेक करोगे तो आप देख सकते हैं सही है। यहाँ पे आपकी क्या है, कितनी गवर्नमेंट को एडवांस GST हमने सबमिट करनी है, ये अमाउंट आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या है, आउटपुट 14% दिया, 39,062.50 एंटर करोगे। अब ये आपसे पूछेगा कि इसका टैक्स कितना हुआ है, 5,468.75, सेम अमाउंट हमारी क्या रहेगी आउटपुट SGST में।
यहाँ पे 14% टैक्सेबल वैल्यू 39, जितने का हमने ये विदाउट टैक्स है 39,000। जैसे ही हम इस पे ऐड करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगी हमारी। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी प्रोवाइड डिटेल यस, लेजर नेम दीपक, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी बुक, कंट्रोल ए करोगे तो आप देखोगे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कहां पे शिफ्ट हो गई है, ये देखिए। और आप देखोगे नेक्स्ट जो बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, ये क्या हो गई, नील हो गई है। तो आपको पता लग गया कि आपने ये बुक कर लिया है। आप बैक जाओगे तो आपको यहाँ पे नीचे करोगे तो ये दिख रही है, अभी एडजस्ट नहीं की हुई है। GSTR1 जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे क्योंकि अभी आपने कोई एंट्री पास की थी, बुक की थी, तो हमने टैक्स लायबिलिटी कहाँ पे बुक कर ली, ये आपको क्या दिख रही है, बुक्ड की हुई दिख रही है। अब ये एडवांस रिसिप्ट अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई का मतलब क्या है कि आपने इसका यूज नहीं किया है अभी तक। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस महीने तो हमारी कोई सेल नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को क्या होगी, ये टैक्स पे करना पड़ेगा हमें 10,937.50 का। ये CGST और SGST क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसको देखोगे आप तो इस प्रकार आपको अमाउंट दिखेगी। अब आपने बैलेंस शीट में आना है, बैलेंस शीट में आपने Alt F1 प्रेस करना है। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपने देखना है आउटपुट टैक्स हमारा कितना है, 10,937.50 CGST SGST। यह हमारा इस मंथ के लिए क्या है, टोटली टैक्स लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट को पे करनी है। और अब हमने ये एडवांस टैक्स क्या है गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए किस में जमा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर पे आओगे, वाउचर पे गवर्नमेंट को अब हमने क्या कैश में जमा करना है, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जमा करना है। तो चालान बनाते हैं हम लोग ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, F5 वाउचर खोलना है। आपके राइट हैंड साइड पे पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर CGST, और इसको किसके अंदर रखोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे। और GST ये हमारा सेंट्रल टैक्स है, कंट्रोल A कर लोगे। और हमारी CGST का टैक्स कितना है, हमने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, 5468,546.75। सेम आपने डेबिट करना है, Alt C करना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST को सिलेक्ट करोगे, स्टेट टैक्स कंट्रोल A कर लोगे। सेम अमाउंट आप डालोगे 0.75। ये अमाउंट हम लोग किसके थ्रू पे करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू। हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखना है नरेशन में, बीइंग अमाउंट डिपॉजिट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन अप्रैल मंथ, कंट्रोल A करोगे। अब जैसे ही आपने एंट्री पास की, उसके बाद हम लोग फिर से
बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 प्रेस करोगे, यहाँ पे ऑल्ट F1। अब आप ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाओगे, आप देखोगे कि आपके ECL अकाउंट में कितना डिपॉजिट है, 10,937.50 और आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब हम एक और एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, जो पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो आपने क्या करना है, वाउचर में आ जाना है, वाउचर पे जनरल वाउचर सिलेक्ट करना है, F7 सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या आउटपुट CGST को सिलेक्ट करना है। आपके सामने अमाउंट दी हुई है 5468.75। फिर से यहाँ डेबिट रखना है, आउटपुट 5468.75 एंटर करोगे। यहाँ पे क्रेडिट, अब हमने ECL से कैंसिल करना है 5468.75 ECL SGST और नीचे नरेशन में डालना है बीइंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, कंट्रोल A करके सेव कर लोगे। अब वापस हम लोग बैलेंस शीट पे चलते हैं, बैलेंस शीट पे जाओगे, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाओगे, आप देख रहे हो कि आपके ये दोनों क्या है, नील हो गए हैं। अब हम लोग GST रिपोर्ट देखेंगे, शॉर्टकट की है DO1। अब आपने यहाँ पे डेट चेंज करनी है, ऑल्ट F2, 1/5/25। आप देखोगे कि आपको यहाँ पे B2B इनवॉइस, अगर आपके कुछ एरर आ रहा है आपके उसमें, तो आप देखना अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में आपका 1 लिखा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है और GSTN एक्सेप्ट करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि ये GST नंबर हमने खुद से बनाया हुआ है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर ओरिजिनल होगा तो आपको नहीं दिखेगा। अब आपने देखोगे यहाँ पे हमें कितने की इनवॉइस पे कितना टैक्सेबल 13,125 हमें टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। अब हम इसी प्रकार GSTR 3B में आया था, ऑल्ट F2 दबाओगे, 1/5/15, तो आप देखोगे 13,125 हम पे करेंगे इस मंथ में। अब इसमें ऑलरेडी हम कितना पे कर चुके हैं, कितना पे कर चुके हैं, कोई बता सकता है? हम पे कर चुके हैं 10,900,375। ये अप्रैल मंथ का आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें इसमें से अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, 1/5/F5 F2, 1/5/1/5। अब हमने ऑल्ट J प्रेस करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी और सेल्स अगेन एडवांस रिसिप्ट। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जब हमने एंट्री की थी इंक्रीज सेल्स टैक्स लायबिलिटी, आपने यहाँ पे देखा होगा यूज इंक्रीज सेल्स लायबिलिटी और सेल्स ऑन अकाउंट एडवांस रिसिप्ट। तो यहाँ पे ये हेडिंग है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आपने एंट्री देखी थी एडवांस टैक्स रिसिप्ट डेबिट था और आउटपुट सी, यहाँ पे उल्टी रिवर्स कर देनी है एंट्री, हमने आउटपुट CGST को डेबिट रखना है 39,062.50। एक बार चेक कर लेंगे आप, आपने स्क्रीनशॉट रखा होगा 39,060.50, एंटर करोगे। यहाँ पे अब अमाउंट डालनी है हमें
कितनी एडवांस पे की है? 5468.75 एंटर करोगे, फिर डेबिट आउटपुट SGST को सिलेक्ट करोगे, सेम अमाउंट रखोगे, रेट एंड टैक्सेबल वैल्यू 5468.75 एंटर करोगे, यहाँ पे क्रेडिट। अब आप देख रहे हो कि आपने एडवांस में टैक्स लिया हुआ है, ये इसको डेबिट करोगे। यस, आपका ये एडवांस रिसिप्ट जहां पे आपने मैनुअल बुक की होगी, मेरे पास ये 22 पेज नंबर पे है। रिसिप्ट डेट क्या थी? 1/4 लेजर दीपक सिंह। कंट्रोल ए करोगे, यहाँ पे बीइंग डिक्रीज टैक्स अगेंस्ट सेल्स। कंट्रोल ए प्रेस करोगे, आप देखोगे कि आपकी इस मंथ में रिड्यूस हो गई। अब हमें कितना पे करना है? GSTR 3B में जाएंगे, Alt F2 1515 एंटर करोगे। अब हमने कितना पे करना है गवर्नमेंट को? 2187.50। ये गवर्नमेंट को हमने क्या करना है? पेड करना है टैक्स। आप देख सकते हो इसमें से एंट्री को, ये हमने सेल की थी, ये हमने रिड्यूस कर दी। ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को ये पे कर चुके हैं 10,937.50। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने 10,000 और 13,000 हमारी इस मंथ में बनी हुई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, दीपक का लेजर पे आते हैं, अकाउंट लेजर दीपक, कितना और पे करना है हमें? अब ये बोल रहा है कि दीपक को हमने 10,000 और पे करना है। यहां से क्या है, Alt F2 कर दोगे, रिमूव कर देना अपना, तो आप देखोगे 10,000 और पे करना है आपने। यहाँ पे वाउचर पे जाना है, गेटवे टैली वाउचर, और रिसिप्ट करनी है 10,000 की अमाउंट। क्रेडिट क्या होगा? दीपक 10,000 आपको डिस्प्ले हो रही है, यहां से अगेंस्ट सेल की है, और SBI बैंक अकाउंट पे आएगी हमारे। कंट्रोल ए करोगे, अब आप वापस जाओगे डिस्प्ले अकाउंट लेजर दीपक सिंह, तो आप देखोगे कि अब हमारा क्या है, अकाउंट क्लियर हो गया। अब इस मंथ में हम लोग टैक्स कितना भरेंगे ये देखेंगे। अब हमें बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में Alt F1 प्रेस करोगे, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाओगे। आप देख रहे हो कि हमें गवर्नमेंट को कितनी पे करनी है, 2187.50। तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लोगे, मैं भी स्क्रीनशॉट रख लेता हूं इसका, ताकि भरने में इजी हो। स्क्रीनशॉट रख लिया। अब आपने टैली पे आना है वापस। अब हमने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अमाउंट को सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट सिलेक्ट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को सिलेक्ट करोगे। यहां से हमें अमाउंट क्या है लिखनी पड़ेगी मैन्युअली। कितनी अमाउंट थी? 1093.75। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ES इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
1093.75 और इसको किसके थ्रू, SBI बैंक के थ्रू हम लोग पेड कर रहे हैं। बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन माय मंथ। अब ये एंट्री वैसे तो 31 मार्च को नहीं थी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मई में ही कर रहा हूँ। कंट्रोल ए करोगे, अब आप देखोगे बैलेंस शीट पे, ऑल्ट F1 करोगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस आपको, अब हमें एक इस एंड ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इसको हमने जो डिपॉजिट किया है 2187.50, अब हम एक जर्नल एंट्री करेंगे जिससे क्या है, पेमेंट करेंगे। आपने राइट हैंड साइड पे जाना है, F7, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है आउटपुट CGST 1093.75 डेबिट, आउटपुट SGST 1093.75 क्रेडिट। आपने ECL इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर CGST के लिए 1093.75 क्रेडिट करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो हमारा पोर्टल के अंदर अकाउंट मेंटेन होता है, यहाँ पे आपने लिखना है बीइंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स इन माय मंथ। कंट्रोल ए कर लोगे, सेव कर लोगे। अब आप देखोगे बैलेंस शीट पे जाओगे, अब आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। अब हम लोग GST रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। GST रिपोर्ट GSTR1, यहाँ से डेट चेंज कर लोगे 1/5 क्योंकि हमने मई मंथ में की थी, तो आपको यहाँ पे एक एंट्री दिखने को मिल रही होगी, एडजस्टमेंट, ये माइनस हो रही है, इसमें से माइनस होने के बाद आपको ये डिस्प्ले हो रही है। और दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, एडवांस रिसिप्ट में कहाँ चले गए, सेल्स अगेन एडवांस फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ये अमाउंट आपकी, ये अमाउंट ऊपर से कहाँ चलेगी, नीचे चलेगी, पहले अनएडजस्टेड पे थी। अब इसी प्रकार हम लोग GSTR3 भी चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने डेट डालनी है 1/5। अब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एडवांस रिसिप्ट, ये भी हमारी अमाउंट अनएडजस्टेड से कहाँ पे चली गई है, सेल्स अगेन एडवांस फ्रॉम प्रीवियस मंथ, यहाँ पे आ गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आउटवर्ड पे आपकी टैक्स लायबिलिटी, अगर आप यहाँ पे क्या एंटर हिट करोगे इस पे, तो आप देख सकते हो कि आपकी किस प्रकार रिटर्न गई हुई है। आपने इस महीने सेल की 1 मई को, उसका टैक्स बना 13,125, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी 10,937.50 मई मंथ में दी हुई थी, तो हमने इसको क्या किया, कैंसिल किया। थैंक यू। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट। आप इसकी इस प्रकार भी देख सकते हो कि कितनी टैक्स लायबिलिटी है, लोकल सेल है, टैक्स कितना है, और इसमें से हमने CGST एडजस्टमेंट कितने की। उसी प्रकार आप ये GSTR1 भी देख सकते हो। F2 करोगे 1/5 और यहाँ से F5 प्रेस करोगे, नेचुरल व्यू, रिटर्न व्यू, तो आप देख सकते हो
इस प्रकार आपने ये रिपोर्ट तैयार की। थैंक यू, लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट।